Good morning, children. Today we will start the the chapter number 3 of 7th. That is, we have told you before about the sultans, but today I will tell you about the nobles. Nobles held important military and civilian posts in administration, although Sultan needed their support to remain in power, yet he considered it important to keep them under his control. सबसे ज़्यादा सुल्तान को ज़रूरत जो पड़ती थी वो नोबल्स की पड़ती थी। उन्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता था अंडर हिज कंट्रोल। द खान्स वर द हाईएस्ट रैंक अमंग देम। खान्स को सबसे ऊपर रखा जाता था। फॉलोड बाय द मलिक्स, उसके बाद मलिक्स आते थे। एंड देन अमीर्स, फिर अमीर्स आते थे। दे दे possessed 10,000, 1,000 and 100 horses respectively. उन लोगों के पास 10,000, 1,000 और 100 horses होते थे under their command. They obtain salaries from the revenue of Iqta. Iqta means a piece or tract of land of or village granted to them, जो उन्हें दिया जाता था, उससे ही उनको सैलरीज मिलती थी। द इक़्तिदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द विलेज peasants and they maintain their army under their command with the money by obtained by it. जो इक़्तिदार पैसा जमा करते थे लैंड रेवेन्यू की शक्ल में, उससे ही वो आर्मी को मेंटेन भी किया करते थे। However, their land could be taken away by the Sultan, who depended in their contingent during the wars. कुछ ज़मीनें ऐसी होती थीं जो सुल्तान ले लेता था जब वो उस बीच में वो लड़ाई लड़ रहे होते थे। Several nobles tried to become independent, इसलिए कुछ nobles अब आज़ाद होना चाहते थे। Many of them was born as nobles, कुछ तो nobles में ही पैदा हुए थे and were related to sultan, और वो सुल्तान से जुड़े हुए थे। As they was sent as the head of various province, कुछ जिनको आगे कुछ प्रोविंस का हेड बनाकर भेज दिया गया था। A slave of Tughlaq's wife named Imadul Mulk attained a high position owing to his hard work and intelligence. Slave of Tughlaq's wife, एक स्लेव जो तुगलक वाइफ जिसकी बीवी थी, तुगलक के इनकी थी, जिसका नाम इमादुल मुल्क था। अटेंड हाई, जिसको हाई पोजीशन दी गई थी उसके हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस, अक्लमंदी के लिए। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द ममलूक्स, द नोबल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेलेक्टिंग द सुल्तान। मुमलिक्स के पीरियड में नोबल्स ही सेलेक्ट किया करते थे सुल्तान को। However, Balban, who was one of the slave, realized that their power, बलबन भी एक गुलाम ही था, लेकिन उसने अंदाज़ा लगा लिया था इनकी ताकत का। He shattered the power of the prominent group known as 40. उसने एक जो मजबूत ग्रुप था, ताकतवर ग्रुप था, उसको बखेर दिया या अलग अलग कर दिया, जिसको 40 कहते थे। According to the evidence provided by Zia Barni, Balban maintained a splendid court no other ruler had done before. बलबन
ने जैसा अपनी कोर्ट या अदालत को बनाया था, ऐसे पहले किसी राजा ने इतनी बड़ी अदालत नहीं बनाई। He was always surrounded by bodyguards, and in order to exhibit his dominance upon the nobles, वो हमेशा अपने अंगरक्षकों के बीच में घिरा रहता था, अपनी डोमिनेंस या ताकत दिखाने के लिए। He directed them to perform sajda. Sajda means to kiss the feet of the ruler, जो जिसे सजदा कहा जाता है। He never talked to the people of low origin. वो अपने से नीचे लोगों से कभी बात नहीं करता था। And gave such severe punishment that the slaves and the noble remain frightened of him. वो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देता था ताकि वो उससे हमेशा डरे रहें। According to Barani, the Sultan spies kept an eye on the activities of the nobles, that they provide their true account to the Sultan. और सुल्तान के सिपाही हमेशा उस पर नज़र रखते थे, नोबल्स पे, ताकि वो सही रिकॉर्ड्स या काम की सही जानकारी सुल्तान को दें। अपार्ट फ्रॉम मुगल्स, Turkish, Iranian and Afghani nobles and many Hindustani also become nobles in the court of Muhammad bin Tughlaq. इसके कोर्ट में मुगल्स भी थे, तुर्किश भी थे, ईरानियंस भी थे और हिंदुस्तानी भी थे। In Firoz Shah reign, the noble gained power, become the son of the noble was allowed to succeed his father office even if he was not competent enough. नोबल्स को फिरोज शाह के टाइम में ताकत बढ़ाई जब उन्हें पता चला कि इसका बेटा ही राजगद्दी पे बैठेगा, चाहे वो लायक हो चाहे न हो। Buildings. Sultans build magnificent and splendid buildings to exhibit their power. Alauddin built a minar that was taller and broader than the Qutub. सुल्तान ने जो बिल्डिंग्स बनाई वो मैग्निफिशेंट, बहुत सुंदर, एंड स्प्लेंडेड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी, टू अपनी ताकत दिखाने के लिए। अलाउद्दीन ने एक मीनार बनाई जो कुतुब मीनार से भी लंबी थी और चौड़ी थी। Although it could not be completed, वो पूरी नहीं हो पाई, yet it shows its desire to impress the people. वो उसकी इच्छा थी कि लोगों को प्रभावित कर सके। He also established a मदरसा. उसने एक मदरसा बनाया जिसको स्कूल भी कहते हैं, इन कुतुब कॉम्प्लेक्स। फिरोज शाह बिल्ड द सिटी ऑफ फिरोजाबाद. उसने फिरोजाबाद का शहर भी बनाया। While Muhammad Tughlaq formed the city of जहांपनाह. उसने जहांपनाह का शहर भी बसाया। The tombs were large, attractive and well planned. जो गुंबद बनाए जाते थे वो बड़े, आकर्षित और सही तरीके से बनाए जाते थे। The Lodi rulers used the garden to place their tombs to at a high platform at the center to increase the appeal. लोधी रूलर्स जो अपनी टोम्स बनाते थे वो गार्डन में बनाते थे और एट ए हाई प्लेटफॉर्म, ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाते थे ताकि लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंच सके। They contain balconies and the shape of the base is octagonal. Minarets, domes, arcs were new features in architecture introduced by the ruling children. Today I will tell you about the masjid. Before I have told you about other facts. A mosque is known as the masjid in Arabic, literally a place where Muslims
prostrates in reverence to Allah. A mosque is a mosque is known as masjid. मॉस्क को हम मस्जिद कहते हैं अरबिक में. लिटरली वो जगह जहाँ मुस्लिम्स पोस्ट्रेट मीन्स टू बो बिफोर द गॉड, अल्लाह के आगे झुकते हैं, उसे मॉस्क कहते हैं. इन ए कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स और नमाज collectively. Members of the congregation choose the most respected and learned man as their leader imam. For the ritual prayers, he also delivered the sermon khutbah during the Friday prayer. एक कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क उसको कहा जाता है जो बड़ी होती है, जिसे जामा मस्जिद भी कहते हैं, जहाँ बहुत से लोग एक साथ ही प्रेयर कर सकते हैं. उसमें मुस्लिम्स अपने बीच में से ही एक लीडर को चुन लेते हैं जिसको इमाम कहा जाता है, जो रिचुअल प्रेयर्स कराता है. और ही ऑल्सो डिलीवर द सरमन इज नोन एज खुतबा विच जो फ्राइडे प्रेयर में ही दिया जाता है. ड्यूरिंग द प्रेयर, मुस्लिम फेसिंग मक्का इन इंडिया इज टू द वेस्ट. दिस इज कॉल्ड किबला. मुस्लिम्स जब नमाज पढ़ते हैं तो वो उनका फेस मक्का की साइड होता है. इंडिया में जो वेस्ट साइड में है उसे किबला कहा जाता है. The army was essential by the Sultan to remain in power. He also need army to extend his kingdom and protect his territories. आर्मी सुल्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती थी. आर्मी ही उसे ज़रूरत पड़ती थी आर्मी की अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, एंड प्रोटेक्ट हिज टेरिटरी, और अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए भी. Attacks by the Mongols from the northwest during the 13th and 14th century posed a great threat to the Delhi Sultanate. Genghis Khan posed the greatest threat to Iltutmish kingdom. जो अटैक्स मंगोल्स कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट साइड से 13 और 14 सेंचुरी में, वो दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा था. चंगेज खान सबसे बड़ा खतरा अल्तमश किंगडम के लिए था. बलबन हिमसेल्फ नेवर लेफ्ट दिल्ली ड्यू टू द फियर ऑफ मंगोल इन्वेजन, एंड ही सेंट हिज सन टू द बाउंड्री टू गेट द फोर्ट वॉल रिपेयर्ड. बलबन ने खुद दिल्ली को कभी मंगोल के अटैक की वजह से कभी छोड़ा नहीं. उसने अपने बेटे को भेजा फोर्ट किले की दीवारों को रिपेयर कराने के लिए. सम मंगोल्स अटैक टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन एंड मोहम्मद बिन तुगलक. ज़्यादातर अटैक्स मंगोल्स के अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुए. अलाउद्दीन बिकम कॉन्शियस due to all these, and he started branding Dag all the royal horses which were provided to amirs and the soldiers to avoid their substitution with the horses of inferior races. अलाउद्दीन ने अपने घोड़ों पर एक तरह का निशान या चिन्ह लगाना शुरू कर दिया जिसे दाग कहते हैं, ताकि उसके घोड़े जो अमीर्स को और सोल्जर्स को दिए जाते थे वो दूसरे कम जाति के घोड़ों में ना मिल जाएं. He started maintaining detailed record of the soldiers, which was called chehra. He did all this to strengthen his army. ये उसने सोल्जर्स का रिकॉर्ड भी जमा करना शुरू किया जिसको चेहरा कहते थे, और ये सब उसने अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए किया. सुल्तान आर्मी इंक्लूड
इन्फेंट्री, कैवल इन्फेंट्री मीन्स फुट सोल्जर्स जो पैदल चलते थे सिपाही, कैवलरी हॉर्स सोल्जर्स घुड़सवार, स्क्रैपर्स एंड आर्चर्स इस जो तीर अंदाज भी थे और एलिफेंट्स भी उसकी आर्मी में थे। द आर्मी वॉज स्टेशनड एट द कैपिटल एंड सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। आर्मी को राजधानी में लगाया जाता था या एम्पायर के और हिस्सों में भी लगाते थे। हॉर्सेज वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अरेबिया एंड दे वर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। जो घोड़े अरब से मंगाए जाते थे वो ज़्यादा विशेष माने जाते थे। अलाउद्दीन posed a strong army of 3 lakhs and he tried not to depend excessively on the इक़्तिदार्स। वो उसकी 3 लाख की आर्मी थी और वो डायरेक्ट इक़्तिदार्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहता था। He paid his soldier in cash and performed regular supervision and parade of the soldiers and the horses। वो सोल्जर्स को पे कैश में देता था और उनका बराबर सुपरविजन करता था, मींस चेकिंग करता था और उनके घोड़ों को भी चेक करता था। दे वर अफगान्स, तुर्क्स, मंगोल्स, पर्शियंस एंड इंडियंस इन द आर्मी। आर्मी के अंदर अफगान्स, तुर्क्स, मंगोल्स, पर्शियन और इंडियंस भी थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ महमूद ऑफ गजनी मैनी इंडियंस सोल्जर्स हैड जॉइन द तुर्किश आर्मी। मोहम्मद गजनी के टाइम पे बहुत सारे इंडियंस ने तुर्किश आर्मी ज्वाइन कर ली। He was able to protect his empire from Mongols invasion because of his strong army। वो अपने साम्राज्य को मंगोल हमलों से इसलिए बचा सका क्योंकि पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। द सर्कल ऑफ जस्टिस इन द 13th century फख्र मुदब्बिर wrote, a king cannot survive without soldiers and soldiers cannot live without salary। 13th century में फख्र मुदब्बिर में लिखा है कि किंग विदाउट सोल्जर्स रह ही नहीं सकता और सोल्जर विदाउट सैलरी नहीं रहेंगे। सैलरी केम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट बट पीजेंट कैन ओनली पे रेवेन्यू व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। सैलरीज जो दी जाती थी वो रेवेन्यू से देते थे जो किसानों से जमा किया जाता था, लेकिन किसान जब ही रेवेन्यू या लगान दे पाएंगे जब वो खुशहाल होंगे और उनकी पास पैसा होगा। दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। ये जब भी हो सकता है वो जब सबके साथ इंसाफ करे और ईमानदारी से शासन को चलाए। डिवीजन ऑफ द पावर एम्पायर। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सूबाज और प्रोविंस which further divided into sheikhs। The sheikhs were divided into farganas and the farganas further divided into villages। एम्पायर सबसे पहले सूबाज में डिवाइड किए गए जिसको प्रोविंस कहते हैं, फिर उसके बाद उनको शेख्स में डिवाइड किया गया, शेख्स को फर्दर आगे परगनाज में डिवाइड किया गया और परगनाज के बाद विलेजेस में डिवाइड किया गया। The government officer came in direct contact with the peasants of Pargana। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए थे किसानों के जो परगनाज में थे। द गवर्नर और मुक्ति was the head of province। The शेखदार was the head of sheikhs and amils were the head of Pargana। गवर्नर और मुक्ति वॉज द हेड ऑफ, वो प्रोविंस के हेड थे, शेखदार शेख्स के हेड थे और आमिल्स परगनास के हेड थे।
He measured the land and calculated the tax with the help of assistants. वो जमीन को नापते थे, उसके हिसाब से टैक्स लगाते थे अपने हेल्पर की मदद से. Records were maintained in two languages, Hindi and Persian. Khats, the landowners, and Muqaddam, the village headman, were the two most officers of the village. रिकॉर्ड्स दो लैंग्वेज में मेंटेन किए जाते थे, पर्शियन और हिंदी में. खत्स लैंड ओनर या जमींदार को कहा जाता था, एंड मुकद्दम्स विलेज हेडमैन को कहते थे. वर द टू, वो दो मेन पोस्ट थी जो ऑफिस विलेज में दी जाती थी. पटवारी, द अकाउंटेंट, मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ लैंड, क्रॉप्स एंड द टैक्स टू बी पेड. पटवारी जो अकाउंटेंट, जिसको अकाउंटेंट कहते हैं, वो रिकॉर्ड रखता था ज़मीन का, अनाज का और टैक्स कितना जमा हुआ. लैंड कल्टिवेटर्स, सुल्तान लार्जली डिपेंडेंट ऑन द लैंड रेवेन्यू फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज टू हिज ऑफिसर, मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी एंड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स. सुल्तान पूरी तरह इसी पर, रेवेन्यूज़ पर निर्भर रहता था, जिससे वो सैलरीज देता था ऑफिसर्स की, आर्मी को मेंटेन करता था और इसी से वो बिल्डिंग बनाता था. द विलेज पीजेंट परफॉर्म फार्मिंग. खत्स एंड मुकद्दम्स व ओनर ऑफ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड. गांव वाले खेती करते थे. खत्स और मुकद्दम्स के ही पास बहुत बड़ा एरिया गांव का होता था. द पुअर पीजेंट्स हैड स्मॉल प्लॉट्स. द फार्मर ओन सीड, कैटल एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स. गरीब लोग, किसानों के पास अपना अनाज लेते थे, जानवर होते थे और खेती करने के औजार होते थे. लैंडलेस पीपल वर इन लार्ज नंबर्स एंड दे यूज्ड टू वर्क ऑन द फार्म ऑफ अदर पीजेंट टू अर्न देयर लिविंग. वो लोग बहुत ज़्यादा थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थीं. वो दूसरे लोगों के खेत पर काम करके अपनी जीविका कमाते थे. There were two kinds of land. दो तरह की ज़मीनें थीं. One was given to the इख्तिदार्स and other kind of land called the खालिसा was under the direct control of सुल्तान. पहले दो तरह के लैंड थे, जो एक तो इख्तिदार्स को दे दिया जाता था, दूसरा कहलाता था खालिसा, जो डायरेक्ट सुल्तान के कंट्रोल में होता था. Most of the Sultan took keen interest in improving and extending agriculture. Irrigation facilities were provided for this. वो सबसे ज़्यादा ध्यान खेती को बढ़ाने में देता था और सिंचाई के लिए सुविधा भी कर रहा था. Canal and crops. The biggest town network of canal in India until the 19th century was built during the reign of Firoz Shah Tughlaq. सबसे बड़ा नहरों का जाल जो बनाया गया था वो 19th सेंचुरी में फिरोज शाह के टाइम में बनाया गया था. The length of the longest canal which connected Satluj with Hansi town was 200 किलोमीटर. सबसे लंबी जो नहर उसने बनाई थी, जो सतलज को जोड़ती थी हंसी से, वो 200 किलोमीटर की थी. Several smaller canals were also built. छोटी नहरें भी बनाई गई थी. According to Ibn Battuta, the farmer obtained the two harvests in 1 year by sowing both in Kharif as well as Rabi crops.
किसान दो बार में दो तरह के अनाज बो सकते थे एक ही साल में। खरीफ में भी बो सकते थे और रबी में भी बो सकते थे। क्रॉप्स मेनली इंक्लूडेड wheat, gram, pulses, barley, sugarcane, sesame. Certain variety of mangoes and black grapes were also produced. क्रॉप्स में ज़्यादातर आते थे वीट, गेहूं, ग्राम, चना, पल्सेस, दालें, बारले, जो बाजरा, शुगर केन, गन्ना और कुछ अलग तरह के आम भी बोए जाते थे और काले अंगूर भी बोए जाते थे। Wells were the source of irrigation for most of the farmers. ज़्यादातर किसान कुओं के द्वारा ही सिंचाई करते थे। मोहम्मद तुगलक प्रोवाइड लोन टू पीजेंट्स टू डिग वेल्स। मोहम्मद तुगलक उन्हें लोन देता था कुएं खोदने के लिए। At several places, bolis were also built. Steps were made in such a manner that one could reach right up to the water. वहाँ उसने बोलीज भी बनवाई। बोलीज इस तरह के कुएं होते थे जिसमें स्टेप्स बनाए जाते थे, जिसमें आखिर तक पानी हो, जहाँ तक पानी हो वहाँ तक आदमी पहुँच सके। Water was pulled from the wells using various techniques. उसमें अलग अलग तरीके से पानी खींचा जाता था। Cattle pens were there in every village. Cattle pens जानवरों के रखने की जगह भी बनाई गई थी हर गांव में। Ghee was the major item of trade and the ghee traders made immense profit. घी मेजर आइटम था जिसका व्यापार ज़्यादा होता था और घी के व्यापारी बहुत ज़्यादा लाभ उठा रहे थे। The Muqaddams and the Khats were influential community during the reign of Alauddin, and so they did not pay khiraj, which is land tax, cattle tax, house tax, which had to be paid by all the peasants. मुकद्दम्स और खत्स एक ताकतवर या प्रभावशाली कम्युनिटी मानी जाती थी, इसलिए वो अलाउद्दीन के टाइम में वो टैक्स नहीं देते थे, खिराज ना वो खिराज देते थे, ना कैटल टैक्स, ना हाउस टैक्स, जो सारे किसानों को देना ज़रूरी था। They exploited the peasants and often levied even their own taxes on them. और अपने जो टैक्स उन्हें देने होते थे वो भी उन्हीं से दिलवा देते थे। They become so rich that according to the evidence provided in the writing of Zia Barni, they used to ride on Arabian horses and wear fine silk clothes. वो इतने ज़्यादा पैसे वाले हो गए थे कि अब वो, जैसे कि ज़िया बर्नी ने लिखा है, वो अरेबियन हॉर्सेस पे चलते थे और सबसे अच्छी सिल्क के कपड़े पहनते थे। Economic policies. Alauddin appointed an officer called Shahana who kept a close watch on the traders and the merchants so that they could not cheat people. अलाउद्दीन ने एक ऑफिसर अपॉइंट किया जिसे शहाना कहते थे, जो नज़र रखता था व्यापारियों पर ताकि वो किसी को धोखा ना दे सकें, उसके साथ बेईमानी ना कर सकें। Punishment was provided to those who were less and charged higher prices for that. उन्हें सज़ा दी जाती थी जो लोग कम तोलते थे और ज़्यादा पैसे लिया करते थे। The people as well as the soldiers were able to buy goods at cheap prices and lead a comfortable life because the Sultan has fixed the price of several essential commodities such as food grains, clothes, cooking oil, sugar, cattle and
horses. अब तो सोल्जर्स को भी चीज़ें सही दाम पर मिल जाती थीं, क्योंकि सुल्तान ने कुछ चीज़ों के पैसे फिक्स कर दिए थे, जैसे फूड ग्रेन्स, खाने का अनाज, क्लोथ्स, कपड़े, कुकिंग ऑयल, खाने पकाने का ऑयल, शुगर, कैटल्स और हॉर्सेस. अलाउद्दीन directed all the peasants of Khalisa village of the Doab to pay the taxes in kind of food grains. This was done to ensure availability of food grains and keep them in storehouse for future use. अलाउद्दीन ने अब पीजेंट से कह दिया था कि अब वो टैक्स अनाज के रूप में दे सकते हैं. क्यों? ये उसने इसलिए किया था कि आगे के लिए उसे अनाज जमा करने में आसानी हो, उसके गोदामों में अनाज भरा रहे. However, they were allowed to pay taxes in cash at time when they had to sell their produce soon after the harvest. वो सिर्फ कैश में जब दे सकते हैं पैसे जब उन्होंने अपना अनाज सारा पहले ही बेच दिया हो. 1/2 of the produce were paid as tax. आधा जो उनका अनाज होता था वो टैक्स में देना होता था. Caravans were used to transport the grains to the cities. Land under cultivation in the village was measured by the officers appointed by the sultans. अनाज जो भेजा जाता था दूसरे शहरों में वो कारवांस ले जाते थे. कारवांस मीन्स ए ग्रुप ऑफ हॉर्सेस, जो कई घोड़े एक साथ जाते हैं उसे कारवान कहते हैं. जो लैंड कल्टीवेशन के अंडर ही आता था वो से नापा जाता था सुल्तान के अधिकारियों द्वारा, जिन्हें आमिल्स कहते हैं. आमिल्स व सुल्तान ऑफिसर्स हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स. आमिल वो ऑफिसर्स थे जो डायरेक्ट टैक्स लेने के लिए उनको जिम्मेदार बनाया गया था, जो पीजेंट से ले सकते थे. द टैक्स कलेक्शन वॉज डन इन एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट मैनर. और ये बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत स्ट्रिक्ट मीन्स जिसमें देना जरूरी होता था. Just like Alauddin, Muhammad bin Tughlaq also continued to collect 1/2 of the produce in the form of tax from the peasant of Doab region. अलाउद्दीन की तरह मोहम्मद बिन तुगलक भी उनका आधा हिस्सा ले लेता था अनाज का, जो द्वाब रीजन के पीजेंट्स थे. ड्यू टू द फेलियर ऑफ मानसून एंड ड्यू टू फेमाइन फॉर सेवरल ईयर्स इन द्वाब रीजन, वहाँ बारिश भी कम हुई, इसकी वजह से सूखा पड़ गया कुछ सालों तक द्वाब रीजन में. मैनी फार्मर्स वॉज अनेबल टू पे द टैक्सेस. बहुत सारे फार्मर्स ऐसे थे जो टैक्स नहीं दे पाए. लेटर द सुल्तान एस्टैब्लिश ए सेपरेट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड लोन टू द पीजेंट्स एंड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. उसने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जिससे वो किसानों को लोन देता था अपनी खेती को बढ़ाने के लिए. According to the Firoz Shah count, he would collect only खिराज for the cultivatable land. वो खिराज सिर्फ उसी से लेता था जहाँ पर खेती हो रही होती थी. ज़कात, टैक्स फॉर द चैरिटी. ज़कात उसको कहते हैं जो मुस्लिम्स चैरिटी के रूप में देते हैं. एंड जजिया फ्रॉम द नॉन मुस्लिम्स, और वो टैक्स जो लेता था जजिया वो नॉन मुस्लिम से लेता था. एंड ऑल अदर टैक्सेस व इलीगल, और सारे जो टैक्सेस लेता था वो गैर कानूनी थे.